ভোটের নজরদারিতে এবার কেন্দ্রীয় এজেন্সির শরণাপন্ন হতে চলেছে জাতীয় নির্বাচন কমিশন। মঙ্গলবার একাধিক কেন্দ্রীয় এজেন্সিকে নিয়ে একটি পোর্টাল তৈরি করার কথা জানিয়েছেন মুখ্য নির্বাচন কমিশনার রাজীব কুমার। সাংবাদিক বৈঠকে তিনি বলেন, সব কেন্দ্রীয় এজেন্সিকে নিয়ে একটি পোর্টাল তৈরি করা হয়েছে। নির্বাচনে আর্থিক দুর্নীতি আটকাতে এই পোর্টালের সাহায্য নেওয়া হবে। লোকসভা ভোটের প্রস্তুতি খতিয়ে দেখতে রাজ্যে এসেছেন মুখ্য নির্বাচন কমিশনের নেতৃত্বাধীন ফুল বেঞ্চ। মঙ্গলবার সাংবাদিক বৈঠকের আগে 22টি কেন্দ্রীয় এজেন্সির সঙ্গে বৈঠক করে কমিশন। কমিশন সূত্রে জানা যায়, ভোটে কালো টাকা এবং অবৈধ টাকার লেনদেন সংক্রান্ত বিষয়ে নজরদারি চালাবে ইডি কিংবা আয়কর দপ্তরের মতন কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থাও। মঙ্গলবার রাজনৈতিক দলগুলির বক্তব্য এবং অভাব অভিযোগ শুনেছে কমিশন। সর্বদল বৈঠকে ছিল তৃণমূল সহ মোট 8টি দল। সাংবাদিক বৈঠকে দলগুলির তরফে যে সমস্ত অভাব অভিযোগ জমা পড়েছে সেগুলির উল্লেখ করেন রাজীব। অর্থ শক্তির পাশাপাশি পেশি শক্তির ব্যবহার নিয়েও অভিযোগ জমা পড়েছে বলে জানান মুখ্য নির্বাচন কমিশনার। তিনি জানান, আমলাতন্ত্র নিরপেক্ষভাবে ভোট করে না, এই মর্মে অভিযোগ জমা পড়েছে তাদের কাছে। এই সূত্রেই কমিশনের তরফে জানানো হয়, ভোট পূর্ববর্তী এবং ভোট পরবর্তী হিংসা রোখার চেষ্টা করবেন তারা। রাজীব বলে, একটি দল বাদে সব দলই অতিরিক্ত কেন্দ্রীয় বাহিনীর দাবি জানিয়েছে। পরিদর্শকদের সক্রিয় হওয়ার আবেদন জানানো হয়েছে। West Bengal is the state famous for its celebration and festivities. As you know, there is a popular Bengali saying, 12 maso 13 parvo. So the election is the 14th parv. जो डेमोक्रेसी का फेस्टिवल है वो भी एक पर्व है और वो आपके सामने है. Please join in this parv. So first of all, I want to request through you all the voters of West Bengal to join in this coming festival of democracy in an extremely friendly environment and in large numbers. The Commission has its priority, very, very clear priority. Free elections, transparently done, violence free, inducement free. This is what is the focus. How do we do that? And what we discussed in last 2 days, that I will brief you all. There is no place for fear. There were partisan role of some of the officers and there were strictures against them. ये भी कहा कि जो ट्रांसफर्स पॉलिसी है कमीशन की वो सही से लेटर एंड स्पिरिट में फॉलो हो. One of the party even raised the issue that false cases are filed and even at times nobody is spared. So generally they said थोड़ा भय का वातावरण है, इसलिए इसको ठीक करने की कमीशन कोशिश करे. They said the violence pre-poll, during the poll and after the poll must be curbed. The international borders should be guarded well so that there is no possibility of any kind of nuisance from that side. उनका ये भी कहना था कि वोटर्स का इंटिमिडेशन डिफरेंट फॉर्म में होता है, खासतौर से 7-8 दिन पहले इलेक्शन के, उसको रोका जाए. बहुत से इन्फ्लुएंशियल पर्सन्स ऐसे हैं जो वोटिंग को रोकने की और इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करते हैं. कहीं कहीं घटनाएं घटती हैं बॉम्ब थ्रो करने की, मोलेस्टेशन की या इंटिमिडेशन की, उनको रोका जाए. All parties except one asked for adequate deployment of CAPF on all the places for controlling law and order. जो चुनाव का प्रोसेस होगा उसके बारे में पॉलिटिकल पार्टीज की मांग थी कि सीसीटीवी कैमरास ज़्यादा से ज़्यादा जगह पर लगाए जाएं. रैलीज की जो परमिशन है या जो भी सुविधाएं पॉलिटिकल पार्टीज को दी जाती हैं, दे मस्ट बी गिवन ऑनलाइन सो दैट जो ऑफिशियल्स हैं वो पार्टीसन बिहेवियर ना कर सकें. तो मैं इन सब जितनी चीज़ें मैं बता रहा हूँ इनका जवाब भी मैं आपको अपने बात के एड्रेस में दूंगा. ऑब्जर्वर्स को अधिक से अधिक लगाया जाए और उनके नंबर, फ़ोन नंबर्स पब्लिक को और पॉलिटिकल पार्टीज़ को दिए जाएं ताकि उनसे जब ज़रूरत हो संपर्क किया जा सके. कॉन्ट्रेक्चुअल स्टाफ जो स्टेट में काम करता है, जो सिविक पुलिस है, जो ग्रीन पुलिस है और जो कॉन्ट्रेक्चुअल स्टाफ है, उसको चुनाव में ना लगाया जाए. चुनाव में होने वाले इम्पर्सोनेशन को रोका जाए. किसी भी एजेंट को बूथ से ना हटाया जाए, ऐसे इंश्योर किया जाए. कुछ पार्टीज का कहना था कि इलेक्शन को एक फेज में किया जाए. ये भी कहना था कि आधार कार्ड अगर कैंसिल हो जाते हैं तो वोटिंग पर कोई असर नहीं पड़ना चाहिए.
और ये भी उनका कहना था कि ईवीएम की मशीन्स का प्रोटेक्शन अच्छे से किया जाए, उनको लाने ले जाने में और उनको रखने की जगह का सिक्योरिटी सफिशिएंट तरीके से किया जाए. So, friends, before I give you the details of what each point wise, we have given very, very strong instructions in no uncertain terms to the entire bureaucracy कि लेवल प्लेइंग फील्ड एस्टेब्लिश करना उनका काम है. किसी भी सूरत में वायलेंस की पूरे चुनाव में कोई जगह नहीं है और मनी पावर की कोई जगह नहीं है. Commission is absolutely determined to ensure that voters enjoy the voting. It's a festival. It's not an environment where you are fearful of exercising your right. So, this we are determined to establish everywhere. Partisan attitude of the bureaucracy, senior, middle and lower, is a no-go area, will not be tolerated. हमने उनको बहुत स्पष्ट इंस्ट्रक्शंस दिए हैं कि अपने नीचे जितनी भी हायरार्कीज हैं, चाहे वो एसएचओज हों, चाहे वो पुलिस की हों, चाहे वो रेवेन्यू की हों, ये डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स और एसपीज की जिम्मेदारी है कि उनको कंट्रोल करें, उनको लेवल प्लेइंग फील्ड एस्टेब्लिश करने में इंश्योर करें. अगर वो करेंगे ठीक है, वो नहीं करेंगे तो हम उनसे करवाएंगे और उनको जिम्मेदार ठहराएंगे. हम इन चुनावों में टेक्नोलॉजी का बहुत इस्तेमाल करने वाले हैं. एक आपको सिर्फ 2-3 के बारे में मैं जरूर बता दूं ताकि आपके माध्यम से लोगों को ये पता लग सके. एक वोटर हेल्पलाइन है, इसमें आप सब चीज़ देख सकते हैं. किसी वोटर को अपना पोलिंग स्टेशन देखना है, अगर उसका मोबाइल नंबर अंदर में है सीडेड, तो वो एपिक कार्ड भी डाउनलोड कर सकते हैं, बीएलओ से भी कनेक्ट हो सकते हैं और मतदाता सूची में अपना नाम भी जांच कर सकते हैं. अनदर इम्पॉर्टेंट एप्लीकेशन इज सी विजिल, सिटीजन्स वी विजिलेंट. इसमें आपका सहयोग खास तौर से हमें चाहिए. अगर कोई भी व्यक्ति शिकायत हो रही है, कोई गड़बड़ी हो रही है, अगर कहीं कोई हिंसा की तैयारी हो रही है, कहीं कोई पैसा बांटने की तैयारी हो रही है, लिकर की तैयारी है, ड्रग्स की तैयारी है, इरेगुलर टाइम में कैंपेनिंग हो रही है, तो इस एप्लीकेशन से या तो लिखकर या तो फोटो खींचकर हमें भेज दें. जहां से भी भेजा गया वहां का लोकेशन हम खुद से ले लेंगे, उसके लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड से, और विद इन 100 मिनट्स हमारी टीम जांच की वहां पहुंचेगी, जांच करेगी, एक्शन लेगी और ये बताएगी भी कि क्या बात सही थी, पार्शियली सही थी और उस पर क्या एक्शन लिया गया. सो प्लीज पॉपुलराइज दिस. आई वुड रिक्वेस्ट दी जितने भी जागरूक सिटीजन्स हैं, वोटर्स हैं बंगाल के, उनसे रिक्वेस्ट है, उनसे अनुरोध है कि अगर कहीं भी कोई गड़बड़ी की शिकायत है तो प्लीज हेल्प अस एंड वी गारंटी दैट आवर टीम विल रीच इन राइट टाइम एंड लेट यू नो व्हाट इज हैपनिंग. जो कैंडिडेट्स ने हमसे कहा था, पॉलिटिकल पार्टीज ने, कि उनको सुविधाओं की बराबर में मिलनी चाहिए, जो मांग थी उनकी, तो उनकी ये मांग हम सुविधा पोर्टल से पूरी करेंगे. जो भी पहले अप्लाई करेगा उसको पहले मिलेगा, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट. अगर एक ग्राउंड को किसी पॉलिटिकल पार्टी ने समय में मांगा कि हमें इस तिथि को, इस डेट को, इस समय पर ये चाहिए, उसको वही समय पर मिलेगा. जो सेकंड पर्सन विल नॉट गेट इट. सो दिस विल एस्टेब्लिश द लेवल प्लेइंग फील्ड इन allotment of all the entitlements to the political parties and candidates. Friends, this is another very important right which the citizens have to know your candidate. किसी कैंडिडेट का अगर कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड है तो इस एप्लीकेशन में उनकी फोटो, उनको क्या क्या उनके ऊपर में क्रिमिनल एक्टिविटीज हैं, इस सबका पता लगेगा. सिटीजन्स कैन गो टू दिस ऐप एंड सी कि उनके एसेट्स एंड लायबिलिटीज भी देख सकते हैं, उनका एफिडेविट्स भी इसी जगह में देख सकते हैं. वो देख सकते हैं कि उनके कैंडिडेट्स के ऊपर में कोई क्रिमिनल चार्ज तो नहीं है. कैंडिडेट को 3 बार न्यूज़पेपर में ये एडवर्टाइजमेंट भी देना है कि मेरे ऊपर क्रिमिनल चार्जेस हैं. पॉलिटिकल पार्टी को भी ये बताना है एडवर्टाइजमेंट के थ्रू अपनी वेबसाइट पर दैट वो ऐसा कैंडिडेट क्यों नहीं चुन पाए जिसका क्रिमिनल बैकग्राउंड ना हो. वाई इट वॉज ए नेसेसिटी दैट दे choose somebody who has a criminal background. So friends, please convey this, expand this, amplify this particular app so that people can see
they have a right to know about their candidate, they can know about their candidate. हमने पूरे चुनाव में धन का दुरुपयोग रोकने के लिए अगेन एक पोर्टल बनाया है, इलेक्शन सीजर मैनेजमेंट सिस्टम। इसमें जितनी भी एनफोर्समेंट एजेंसीज हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट की और स्टेट गवर्नमेंट की, सब इस पोर्टल पे हैं। सबको क्या क्या डायरेक्शंस दी गई हैं ये मैं आपको अभी बताऊंगा। नेक्स्ट में जो इंटरनेशनल और बॉर्डर्स हैं उन पर बहुत ही सख्त विजिल रखने की स्पष्ट इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं। देयर वुड बी पुलिस चेक पोस्ट, फॉरेस्ट चेक पोस्ट, एक्साइज चेक पोस्ट, कस्टम चेक पोस्ट एंड इन टोटल देयर वुड बी अराउंड 151 चेक पोस्ट। और इसके अतिरिक्त एसएसबी, बीएसएफ और अदर एजेंसीज, कस्टम्स, एक्साइज एंड नारकोटिक्स ये भी बहुत सख्त तरीके से इन दिनों में बॉर्डर पे चेकबाल रखेंगे, ऑल द इंटरनेशनल बॉर्डर्स। अगर क्या उनको डायरेक्शन दी गई है मैं आपको बताऊं तो आज की मीटिंग में सुबह में सभी एनफोर्समेंट एजेंसीज को बुलाया गया था। स्टेट पुलिस, एक्साइज, जीएसटी, नारकोटिक्स, एसएसबी, बीएसएफ, कोस्ट गार्ड्स, डीआरआई, एवरीवन, स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, उनसे कहा गया है कि मनी पावर पर बॉर्डर से किसी भी तरीके की ड्रग आने पर, लोगों के इधर से उधर आने पर सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे और लीकर, ड्रग्स, फ्रीबीज को पूरी तरीके से रोकेंगे। चुनाव बिल्कुल इंड्यूसमेंट फ्री होना चाहिए। इसमें जो भी चीज़ लाने की लोग कोशिश करें, खासतौर से ड्रग, किसी भी नॉर्थ ईस्ट से आए, बॉर्डर से आए, मेनलैंड से आए, उसको 100% रोकने का प्रयास करेंगे। एंड दिस एक्शन यू विल सी इन टाइम्स टू कम। कार्रवाई भी छोटे लोगों के साथ साथ बड़े लोगों पर करें, जो किंग पिन्स हैं उन पर करें। ऐसा नहीं कि जो ड्रग और लिकर लेके लोग पेडलर्स हैं, जो हैंडलर्स हैं, उन पर ना करें, बल्कि उन पर तो करें ही, लेकिन जो किंग पिन्स हैं उसके पीछे में हैं उन पर करें। एसएलबीसी को कहा गया है, बैंकर्स को, कि कैश का मूवमेंट उनकी वैन्स में 5 बजे के बाद नहीं होगा। ऐसा नहीं कि एम्बुलेंसेज में, वैन्स में, इन सब में कोई भी कैश लेके इधर से उधर जाने की कोशिश करे। राज्य में जितने भी हेलीपैड्स हैं, एयरपोर्ट्स हैं, उन पर स्ट्रिक्ट विजिल रहेगी, चेकिंग होगी, उन पर फोर्स रहेगी। और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स भी जब हेलीकॉप्टर्स को या प्लेन्स को अपने अपने एरिया में उतरने की परमिशन देंगे तो वो इनकम टैक्स को बताएंगे, और बीसीएस जो एयर ट्रैफिक कंट्रोल जो सूचना देता है वो भी खास तौर से देंगे, ताकि उस पर भी विजिल रखा जा सके। वेयर हाउसेज जितने भी हैं उस पर जीएसटी देखभाल रखेगी। So all the enforcement agencies would work in close coordination and not in silos, so as to ensure that elections are not only violence free but also inducement free. রাজ্যে এবার ৮০,০০০-এর বেশি বুথে ভোট গ্রহণ হবে বলে জানিয়েছে কমিশন। এবার নতুন ভোটারের সংখ্যা ১৫,২৫,০০০। রাজ্যের অন্তত ৫০% বুথে নজরদারি চালাতে সরকারি ওয়েবকাস্টিং করা হবে বলে জানিয়েছেন রাজীব। নির্বাচন সংক্রান্ত কোনো অভিযোগ পেলে সাধারণ নাগরিকও সিভিজিল অ্যাপের মাধ্যমে অভিযোগ জানাতে পারবেন বলে জানিয়েছেন কমিশন। রাজীব বলেন, অবাধ এবং শান্তিপূর্ণ ভোট করতে নির্বাচন কমিশন বদ্ধপরিকর। নির্বাচনকে বাংলার ১৪তম পার্বণ বলে উল্লেখ করেন তিনি। আমরা চাই উৎসবের মেজাজে ভোট দিক মানুষ। হাই নিউজ নেটওয়ার্ক।